Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this chapter 2, history, one of the very important chapters from the board point of view. So we need to complete it. Lot of important points that we have discussed. Lot of important issues that we have discussed have been a landmark in the Indian history. Children, please understand, Indian history has been made, it has been framed, and whatever we are studying today, a lot of people have laid down their lives. Lot of sacrifice has been there. While these sacrifices, while these incidents that had happened, there has been major changes. There has been a major overhauling change that we find in the Indian political system. Non-cooperation movement, yes, we have finished that topic. It ended. The last class what we have discussed, we discussed about the plantation workers also. हमने plantation workers के बारे में भी discuss किया था, where these plantation workers were actually they were forced to work in the plantations. Working conditions were very tough. Working in the plantations was a very tough task. So ये plantation workers जो थे, जैसे भी इनको समय मिलता था, whenever and wherever they got the time, they used to just run away. तेज धूप होती है, चाय के बागान हैं, ठीक है, tea plantations are there, and they always try to run away. भागने की कोशिश करते थे, भाग नहीं सकते थे. There was Inland Immigration Act. लॉ बना हुआ था. Britishers have made the law that these people have to be working in the plantations. And असम में काम करने के लिए वो गुजरात से लोगों को लेके आते थे कि भागने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं भाग सकेंगे. The treatment was very brutal. बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट था to these plantation workers. Okay, they said, they gave the slogan of Swatantra Bharat, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत. And then the conditions that were there for the plantation workers, इसमें आपको जो चीजें मेंशन करनी है, that is the Inland Immigration Act. इनलैंड इमिग्रेशन मतलब आप जिस जगह पे हैं वहां से आप कहीं पे माइग्रेट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गो टू सम अदर प्लेस. ओके, सो ई माइग्रेशन वॉज नॉट अलाउड. इट वॉज पास्ड इन 1859. रिमेंबर द ईयर ऑल्सो. Then what you have to remember is the calling of non-cooperation. Calling off means खत्म करना. Non-cooperation. Non-cooperation को खत्म कर दिया गया. Non-cooperation is finished. Big thing, big time. जबकि चौरी चौरा इंसिडेंट यू हैव टू टॉक अबाउट, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा. चौरी चौरा इंसिडेंट. यस, मॉर्निंग में थोड़ी सी लड़ाई हुई थी बिटवीन द पुलिस एंड द कॉमन पीपल. पुलिस ओपन फायर एंड सम पीपल डाइड. ये जब लोग मर गए तो the farmers were very angry. बहुत नाराज हो गए कि हमारे लोगों को मार दिया.
our people are killed. As a result, what happened in the evening? क्या किया इन्होंने? At night, in fact, not in the evening. Group of the villagers, पूरे जो गांव के लोग थे, मशाल जला के, and they came to the police station. पुलिस स्टेशन में आके 22 पुलिसमैन वेयर के लिए जितने भी वहां पे थे ना, सबको वो भागने की कोशिश भी कर रहे थे तो उनको उठा उठा के फेंक रहे थे. तो इट वॉज अ वेरी हीनियस क्राइम दैट द विलेज पीपल हैव डन. बहुत ही एक दर्दनाक घटना थी जो कि हुई, नहीं होनी चाहिए थी. एक्चुअली इट शुडंट हैव बीन देयर, बट देन इट हैज हैपेंड एंड इट वॉज अ वेरी सॉरी स्टेट. रोक नहीं पाए उसको. महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड. 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए महात्मा गांधी वॉज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल. एंड ब्रिटिशर्स सेड दैट यू आर द लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, यू हैव इंस्टिगेटेड द पीपल. लोगों को आपने भड़काया है. यस, एक्चुअली द ब्रिटिशर्स वेर वेरी अनॉयड विथ महात्मा गांधी कि आप और आपके मूवमेंट, your movements, you say non-violence, but now the movements are taking a violent turn. So if it is becoming violent, if it is violence, then how can you say that the movement is non-violent? नहीं है. अब महात्मा गांधी was arrested and he decided to withdraw the movement. So this is the next topic towards civil disobedience. ये भी एक बड़ा मूवमेंट था ना. अब क्या था, बड़े तरीके से मूवमेंट लॉन्च करना था. महात्मा गांधी had withdrawn the movement after 1922 incident. ये 1922 में हुआ था, चौरी चौरा, which is also called as चौरी चौरा कांड. जो लोग हिंदी में हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, they say it was a कांड ही था ना. इतने सारे लोग जहां मर रहे हैं, where so many people are dying, and Mahatma Gandhi was feeling that the movement was turning violent in many places. So he felt that movement was turning violent and satyagrahis need to be trained. जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, सत्य के लिए जो आग्रह कर रहे हैं, उनको भाई पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा. दैट इज हाउ द गांधी जी's मूवमेंट यूज्ड टू अनफोल्ड. गांधी जी के मूवमेंट की यही खासियत थी कि अगर आप गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग महात्मा गांधी, तो ब्लाइंडली फॉलो महात्मा गांधी, फिर उनके ऑर्डर्स को फॉलो कीजिए. जस्ट फॉलो हिज ऑर्डर्स, जस्ट ओबे व्हाट ही इज सेइंग. एंड व्हेन द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट एट मेनी प्लेसेस, सत्याग्रहीज को उन्होंने कहा कि वायलेंस नहीं करना है, मतलब नहीं करना है. दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल बिफोर दे कुड बी ट्रेन फॉर सत्याग्रह. ठीक है, मास स्ट्रगल के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. सत्याग्रहीज हैव टू बी ट्रेन्ड. यहां पे एक चीज और समझो, फॉर मास स्ट्रगल. इतने सारे लोगों को साथ में लेके स्ट्रगल करना वाज नॉट एन इजी टास्क ना. वो सारी इंडिया को साथ में लेके चल रहे थे.
महात्मा गांधी वॉज इन्वॉल्विंग द होल ऑफ द कंट्री. अब क्या हुआ, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स ना ये मास स्ट्रगल से थक गए थे. ओके, सम लीडर्स विद इन द कांग्रेस were tired of mass struggle. इतने सारे लोगों को साथ में लेके स्ट्रगल करना. प्रॉब्लम वाज नॉट द मास स्ट्रगल, प्रॉब्लम वाज दैट मेनी इनोसेंट पीपल वेर किल्ड. ये बार बार लोगों का, इतने सारे लोगों का मरना, ये तो सही नहीं है ना. How can so many people lay down their lives? And अब इन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन नहीं. Now they wanted to participate in the council elections. These members wanted to participate in council elections. इन्होंने कहा कि council elections, you know what is the thing, I tell you. Britishers always used to say that the Indians are uncultured, uncivilized. खाली सड़कों पे आके चिल्लाना एंड प्रदर्शन करना एंड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ गुंडेइज्म, हुगलिज्म. That is the work of the Indians. Indians को तो पता ही नहीं है कि क्या करना है. Indians are not at all trained people, uneducated. So the educated group felt bad. Educated group said, okay, बहुत elite बन रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे बन रहे हैं, हम आपको पढ़े लिखे तरीके से ही समझाएंगे. उसके लिए क्या था, what was the problem there is कि if the Britishers have to be convinced for a movement, एक मूवमेंट के लिए ब्रिटिशर्स को कन्विंस करना तो उनके साथ, उनके सामने बैठ के बात करने की जरूरत थी. एंड दे नेवर फील्ड लाइक टॉकिंग टू द इंडियंस. इंडियंस वे आर नॉट ऑफ देयर स्टैंडर्ड. सो दिस एलीट ग्रुप, ये जो पढ़ा लिखा ग्रुप था, दे सेड कि दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन काउंसिल इलेक्शंस. ठीक है, एंड इट वॉज काउंसिल इलेक्शन as per proposed in Government of India Act 1990. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से इनको इलेक्शंस, उन्होंने कहा कि चलो हम इलेक्शंस करवाते हैं. एक्ट वॉज पास्ड वेयर द इलेक्शंस वेयर प्रपोज्ड एंड दे सेड कि ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करने के लिए दे नीडेड टू गेट विद इन द काउंसिल्स. ओके, टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज it was necessary to participate in elections. ठीक है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे. ऐसा कोई इंडियन तो है नहीं जो कि इंडियन को वोट नहीं देगा. एंड to oppose the British policies within the council, argue for reform and demonstrate that these councils were not truly democratic. उन्होंने कहा उनके जाके उनके मुंह पे अपोज करेंगे ना. We will go sit with them and tell them what is the problem. Every time they used to say that the Indians are uneducated, untrained, who are coming on the roads and opposing the Britishers. What is this method? What is this way of opposing the Britishers? So, it was necessary to participate in the elections. पहले तो elections में participate करेंगे, उसके बाद argue
फॉर रिफॉर्म्स। आर्ग्यू आप कहां कर सकते हैं? सड़क पे खड़े होकर तो ब्रिटिशर्स के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। बहसबाजी तो उनके साथ उनके ऑफिस में बैठ के ही हो सकता है, पार्लियामेंट में बैठ के ही हो सकता है। सो आर्ग्यू फॉर द रिफॉर्म्स, दे सेड कि अभी रिफॉर्म्स करते हैं, एंड दीज काउंसिल्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट कि काउंसिल्स वेर नॉट ओनली डेमोक्रेटिक। वो प्रूव करना चाह रहे थे एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट councils were not democratic. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बराबर का हक मिल रहा है, बराबर का अधिकार मिल रहा है, लेकिन खाली कहने के लिए नहीं होना चाहिए ना। इट शुड बी सीन, देख के भी तो समझ में आए कि हाँ काउंसिल इलेक्शंस हैं, एंड दीज काउंसिल इलेक्शंस आर वर्किंग प्रॉपरली। कहते थे वो वी आर द डेमोक्रेटिक पीपल, वी लाइक टू बी वेरी जस्ट टू एवरीवन, हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो दे सेड कि उनके साथ बैठ के उनको बताएंगे कि यू आर डूइंग अन्याय ओनली। खाली सड़कों पे खड़े होके डेमोन्स्ट्रेशन से द प्रॉब्लम वॉज नॉट गोइंग टू सॉल्व। द ब्रिटिशर्स वेर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम। सो दिस ग्रुप दैट वॉज टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। देखो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहली चीज क्या है? व्हेन यू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का नाम होना चाहिए, पार्टी का सिंबल होना चाहिए। दीज थिंग्स वेर देयर एट दैट टाइम ऑल्सो। ओके, सो दीज थिंग्स हैव टू बी देयर, एंड व्हाट डिड दीज पीपल डू? Leaders like C.R. Das and Motilal Nehru formed स्वराज पार्टी। इन्होंने अपने पार्टी बनाई और उसका नाम रखा स्वराज पार्टी। कांग्रेस वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। देखो चिल्ड्रन, यहां पे टेक्निक समझने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक दैट कांग्रेस में ऑल द मेंबर्स वेर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन कहा, बोले कब तक नॉन कोऑपरेशन करेंगे? सो दे फॉर्म्ड दी स्वराज पार्टी। कांग्रेस के अंदर में, कांग्रेस के साथ ही, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस से अलग, लेकिन कांग्रेस वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग। कांग्रेस के नाम से इन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड दे वांटेड टू आर्ग्यू विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। यंगर लीडर्स अब क्या थे कि दे फॉर्म दी स्वराज पार्टी एंड दे सेड कि हम तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। दे हैड वेरी गुड रिलेशंस विद, ऐसा नहीं था कि दे वर अपोजिंग द गांधीज पॉलिसी। They knew that Gandhi's policies are very correct. गांधी जी की कोई भी चीज को वो गलत नहीं ठहरा रहे थे, लेकिन पुराने जो नए लीडर्स थे ना, लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पहले सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के ही पार्ट थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे मिलके इनका क्या कहना था? प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजुकेशन, प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल। आप कहे कि आप एकदम आमने सामने की लड़ाई करते हैं, ठीक है, मास एजुकेशन। अब सब मिलकर लड़ाई करना चाह रहे थे, अपोजिंग द ब्रिटिशर्स in a very furious manner. अब क्या हुआ? ये तो इंटरनली काफी lot of debates were going on, lot of discussions were going on. In this debate and discussion, two factors were there that was affecting the Indian politics. During this time, दो चीजें थी।
जिसका कि इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर काफी असर पड़ रहा था। ठीक है, 2 factors reshaped Indian politics in late 1920s. लेट 1920s मीन समझो कि आफ्टर 1925 के बाद का जो समय था, इन लेट 1920s क्या था? व्हाट वर दीज 2 फैक्टर्स? क्या था? पहला था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, हर एक चीज का दे वर लूजिंग, हर एक चीज का दाम कम हो गया था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस began to fall from 1926 and collapsed after 1930. एग्रीकल्चरल, ये 2 रीजंस आपको, ये 2 इफेक्ट्स याद रखने हैं, 2 फैक्टर्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल डाउन फ्रॉम 1926 से ही ये हर एक चीज का दाम जो है बहुत कम होता चला गया, एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930, एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। 1926 में ये खत्म हुआ। एग्रीकल्चरल प्राइसेस, क्या हो गया कि एग्रीकल्चरल गुड्स को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था, खरीदने के लिए तैयार नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड इट इन अनदर मैनर। लोगों के पास पैसा नहीं था, एक्चुअली पीपल डिड नॉट हैड मनी, एंड जो सामान इनका एक्सपोर्ट हो रहा था, द एक्सपोर्ट ऑल्सो डिक्लाइंड, सो डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल डाउन, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल goods fell down, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन। बहुत सारा हमारा सामान बाहर जाता था, बाहर के देश भी अब हमारा सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। ये दिस वाज द टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये रिमेंबर द इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो नाजिज्म में हमने पढ़ा था, the Nazi Germany में what had happened in one day the stock market has collapsed. Yes, this was that phase. Peasants though they were finding it very difficult to sell their harvest. किसको सामान बेचे उनको समझ में नहीं आ रहा था, and pay their revenue. But Britishers were only concerned with their revenue. उनको तो खाली पैसे चाहिए थे। So it was very difficult for the farmers to pay revenue. टैक्सेस देना इनके बस की बात नहीं थी, रेवेन्यू देना है, बट गिविंग द रेवेन्यू was a tough task. By 1930 what happened, the countryside was in turmoil. Countryside means villages. Villages were in turmoil. ये सारा कुछ हो रहा था। द न्यू टॉरी गवर्नमेंट, अब क्या हुआ ब्रिटेन में, देयर वर इलेक्शंस इन ब्रिटेन, देयर वर इलेक्शंस इन ब्रिटेन, एंड न्यू टॉरी गवर्नमेंट came to power. पहले देर वॉज द प्रीवियसली देर वॉज द लेबर पार्टी। ब्रिटेन में खाली 2 पार्टीज है, इट इज अ 2 पार्टी सिस्टम। हाँ, हमने पढ़ा था ना, यस, इलेक्शंस में वी हैव ऑलरेडी रेड 2 पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन ब्रिटेन। तो यही 2 पार्टीज, एक बार एक पार्टी आती है, एक बार दूसरी पार्टी आती है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग, दे फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट, and they constituted a statutory commission under Sir John Simon. They constituted a statutory commission
अंडर सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन फॉर्म हो गया। साइमन कमीशन फॉर्म हो गया। इंडिया में लोग इसको अपोज करने लग गए। क्यों करने लग गए? इट वॉज हाईली अपोज्ड इन इंडिया। वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। आई शो इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ। गॉट इट? कम लेट्स सी। So students, today we have started about the civil disobedience movement. Every time the last 5 minutes I take to make it sure that these points are very clear to you in the book itself. Ultimately you are you would be going through the book. So here you have to remember that the council elections that were to be held, it was according to the Government of India Act of 1919. You have to mention about the Government of India Act of 1919. Okay, and it was important to oppose British policies. They always wanted, they means one group in the Congress. In the Congress there were always two groups. One group said कि ब्रिटिशर्स के साथ, उनके साथ बैठ के और इस समस्या का हल निकालते हैं. अदर ग्रुप वाज सेइंग कि नो नीड टू टॉक टू देम बिकॉज दे वुड बी नेवर अंडरस्टैंडिंग, इन सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे एंड अपने मन की करते रहेंगे. तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है दैट वी कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, गो एंड सिट विद देम इन द काउंसिल एंड आर्ग्यू विद देम. तो इसमें आपको ये नाम याद रखने हैं. एंड द अनदर थिंग दैट रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स इज द स्वराज पार्टी. नाउ हाँ, स्वराज पार्टी आपको बताना है. दूसरा द इकोनॉमिक डिप्रेशन. चिल्ड्रन हियर वन थिंग आई forgot to tell you while conducting the lessons that remember last year the Nazi Germany that we were talking about. Yes, the greatest depression that had happened, the economic depression that had happened in the Nazi Germany. Nazi Germany का असर हुआ था the economic depression that had happened in America. Yes, रातों रात the complete stock exchange crashed. हाँ, in one night everybody came and fanatically sold all the shares. तो सारी कंपनीज बैठ गई. शेयर जो लिया है कंपनी को वो चुकाना पड़ता है ना, तो सारी कंपनीज का भट्टा बैठ गया. All the companies lost all its money. As a result, what happened that there was big economic depression जिसमें कि इंडिया पे भी काफ़ी असर पड़ा. Agricultural prices have gone low. It collapsed after 1930. अब ये commission was formed. Remember, elections were happening. भाई उनके यहाँ तो डेमोक्रेसी थी ना. They did not had anybody who was ruling over them. So in their democratic system there were elections happening and Tory government had come to power. When Tory government had come to power, this is the time that the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India. Constitution किस तरह से चल रहा है, कैसे बातें हो रही है, किस तरह से यहाँ पे इतना unrest है. They were to come and look into the reasons why there was so much of unrest. But what happened is that when the commission had to come to India, in that commission there was not a single Indian member. The whole of the commission was constituted of all British. अरे आप इंडिया की प्रॉब्लम्स को समझने आ रहे हैं. प्रॉब्लम समझो. वाई डिड द पीपल अपोज द साइमन कमीशन? दे सेड कि यू आर कमिंग टू स्टडी द सिचुएशंस दैट आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया, और उसमें इंडियन मेंबर ही नहीं है. देयर इज़ नो इंडियन मेंबर इन दैट. दैट वॉज द रीज़न ऑफ अनरेस्ट एंड दे वेयर ऑल द ब्रिटिश पीपल वेयर देयर. इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, द कमीशन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिश थे. तो इंडियंस ने कहा फिर आप इंडिया आ क्यों रहे हैं.
जब आपको इंडियंस की प्रॉब्लम को ठीक से समझना ही नहीं है, when you do not want to understand the Indians problem properly, why are you coming to India? There has to be some Indian member. This is what was the issue that the Indians were raising, and continuously they were opposing the Simon Commission all over the India. Wherever the Simon Commission had gone, they had to face a big opposition. Go back Simon, go back Simon, Simon go back. इस तरह की ही नारे हर जगह लगाए जा रहे थे. तो it was greeted with the slogan go back Simon and with the black flag. इसी में देखो ये एक इंसिडेंट दिया हुआ है यहाँ पे. लाला लाजपत राय वॉज असॉल्टेड बाय ब्रिटिश पुलिस. पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था अगेंस्ट द साइमन कमीशन. तो वो इतनी चोट लग गई उनको दैट ही हैड डाइड. ओके, चिल्ड्रन, विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.